नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। दुनिया भर की निगाहें इस समय इजरायल, ईरान, अमेरिका और भारत में आज तक पर लगी, क्योंकि इजरायल की संसद से पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ ही देर में पीएम बोलने वाले हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जिस मिसाइल कार्यक्रम को लेकर अटका है, उसी पर आज तक ने ईरान के विदेश मंत्री से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हम आज आपको इसके साथ ही इजरायल में मोदी नेतन्याहू के भगवा गठजोड़ की एक्सक्लूसिव बातचीत भी सुनाएंगे और बताएंगे कि क्या जापान के दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने 2027 का कौन सा निवेश कर दिया। तो सबसे पहले आपको खबरदार करते हैं आज तक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव से। दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे को दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को दी गई धमकियां दुनिया सुन चुकी है। अब बारी ईरान की है, जिसने आज तक के जरिए अमेरिका को खबरदार किया है। अमेरिकी धमकियों और जिनीवा में बातचीत से कुछ घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आज तक से बातचीत में कई बड़ी बातें कही हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की ही अमेरिका के साथ जिनीवा में बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए उनका ये इंटरव्यू सारी दुनिया देख रही है, जो ये जानना चाहती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों पर ईरान क्या सोचता है। क्या ईरान उसी मिसाइल कार्यक्रम को लेकर अपना फैसला कर चुका है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अमेरिका आंखें तरेरता है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की संसद से कुछ ही देर में संबोधन करने वाले हैं। आज तक से बातचीत में ईरान के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के इस आरोप को खारिज किया कि वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना रहा है। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। अब्बास अरागची ने दो टूक कहा कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन युद्ध के लिए तैयार है। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को तैयार है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर समझौता नहीं करेगा। India Today is right where the news is, and we are with the person who's making that news in the Ministry of Foreign Affairs of Iran, sitting here in Tehran with the Foreign Minister of Iran, Abbas Araghchi. Thank you so much, sir, for joining us and giving us the opportunity to explain what's happening in this part of the world and how it impacts Iran. Let's begin with President Trump's State of the Union address, the longest one, but he's put Iran on notice. Is Iran prepared? First of all, thank you for having me. On your question, of course we are prepared. We are fully prepared for both options. War, God forbid, and peace. As you know, I'm going to Geneva this afternoon in order to have the third round of our talks with the U.S. team. And we have made some progress last time. We were able to find some sort of understandings. And I think based on those understandings, we can build something in the form of an agreement, a deal. I think a fair, balanced, and equitable deal is achievable, and we can do it. Of course, our armed forces are prepared to do their job, and we know how to defend ourselves, and this is what we did last time. And we have learned lots of lessons from the last war, so we are even more prepared. And that means, by the way, that the aim is to prevent a war. When you are prepared for a war, you can prevent it. Otherwise, you are inviting it to your home. So we are fully prepared, not because we want war, because we want to prevent the war. I'm a man of diplomacy. I have to talk about my own job. And I think the way we are going to is the best possible way to resolve this problem. There is no military option for Iran's peaceful nuclear program. If there is any concern, if there is any question, if there is any ambiguity, we are ready to address. We are ready to answer questions. We are ready to remove concerns.
but we are not ready to give up our right for peaceful use of nuclear technology. This is what we demand. So I believe that tomorrow in Geneva, there is every possibility to come to an agreed solution which is fair and balanced. You believe there's going to be an agreement, or are you just hopeful there's going to be an agreement? I think it is achievable. I'm hopeful, of course. Of course, it depends on the other side's determination. To be honest with you, we are not fully convinced that they have a real determination to do that. Why? Because we have a bitter experience of the last time. We were negotiating last June when Israel attacked us, and then the US joined that attack. So that memory is still fresh for us. The wounds of that aggression is still alive in our minds. So we cannot forget that once we negotiating with the US and then they decided to attack us. This time we are obviously more careful and we have concern. But if there is a genuine, if there is a real serious determination in their side to come to a conclusion, I believe it is achievable. Minister Arakchi, you're saying that you're hopeful and you see intent, not as much, but you're dealing with a US president who is unlike any other in the past. Look at the statement and please react to the statement, his State of the Union address. He has very clearly said, and please tell me where that credibility of the information really comes from, when he says that President has claimed that Iran is developing missiles that can reach America. And the negotiations and the terms and conditions are no enrichment at all. So where does the claim of the missiles really come from then? Complained about fake news. So I think now it is himself the victim of fake news, unfortunately. We are not developing, long-range missiles, and we have limited the range of our missiles below 2,000 kilometers intentionally by ourselves because we don't want anyone. We don't want it to be like a global threat. This is only to defend ourselves. Our missiles has, defense nature. They are only to build deterrence and to help us defend ourselves, exactly as they did in the last June's war. We didn't initiate that war. It was Israelis and then Americans. We only defended ourselves. ईरान पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। न ट्रंप समझौता करने को तैयार है, न ईरान पीछे हटने को। ऐसे में युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी इजरायल में हैं। वो थोड़ी देर में इजरायल की संसद को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इजरायल की संसद में किसी विदेशी नेता का संबोधन सिर्फ भाषण नहीं होता है, बल्कि रिश्तों को लेकर इजरायल का बड़ा संकेत होता है। नेसेट में संबोधन का मतलब इजरायल से उस देश की करीबी से होता है। यह किसी भी विदेशी नेता को दिया जाने वाला सबसे बड़ा राजनयिक सम्मान होता है। रणनीतिक संबंधों में नए दौर का पुख्ता इशारा होता है। लोकतांत्रिक एकता का प्रतीक होता है। इसकी अहमियत अमेरिकी उदाहरण से समझिए, जो इजरायल का सबसे करीबी दोस्त है। फिर भी 1979 के बाद से केवल 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इजरायली संसद को संबोधित किया है। तो इजरायल भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान देकर बता रहा है कि भारत बहुत अहम है। 9 साल बाद इजरायल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर दुनिया की नजरें हैं, लेकिन क्यों? 4:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी तेल अवीव पहुंचते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने पहुंचे। दोनों नेता जब एक दूसरे से मिलते हैं, तब साल 2017 की तरह ही गर्मजोशी नजर आती है। इजरायल मोदी मैं दिखा। फिर क्यों इस बार पीएम मोदी ने खुद अपने इजरायल के दूसरे दौरे को ऐतिहासिक बताया है, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वास्तव में इजरायल की एक ऐतिहासिक यात्रा है। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय मित्रता को नई गति मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें इजराइल के अखबार जेरूशलम पोस्ट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे पर स्पेशल एडिशन छापा गया है। पहले पेज पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ लिखा है, नमस्ते मोदी। इजराइल का मीडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक बता रहा है। सवाल है कि क्या इसकी वजह भारत और इजराइल के संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक अपग्रेड करना है। ये दर्जा अभी इजराइल ने अमेरिका और जर्मनी को देकर रखा है। सवाल है कि जिस वक्त ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर कभी भी हमला कर सकते हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम जाकर क्या संदेश दुनिया को दिया है? इसका भारत और ईरान के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, जिस पर अमेरिकी हमला अब तय लगता है? भारत में भले ही विपक्ष मोदी के इजराइल दौरे के समय पर सवाल उठाए, लेकिन दोनों देशों के नेता एक पल भी गवाए इस दोस्ती को और मजबूत करना चाहते हैं। इसका एक बड़ा सबूत इन दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री है। नरेंद्र मोदी के पहुंचने का वीडियो नेतन्याहू ने पोस्ट करके लिखा है, स्वागत है मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। पीएम मोदी के नमस्कार का जवाब नेतन्याहू ने नीचे से दिया। रेड कारपेट पर खड़े नेतन्याहू ने दोबारा पीएम मोदी की तरफ हाथ जोड़े। पीएम मोदी ने सीढ़ी से नीचे उतरते ही नेतन्याहू को बीबी कहकर संबोधित किया। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया, गले मिले। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से कहा कि आपको देखकर अच्छा लगा। इसके बाद पीएम मोदी ने नेतन्याहू की पत्नी से हाथ मिलाया। नेतन्याहू ने पीएम को बताया कि दोनों के कपड़ों के रंग में समानता है। जवाब में प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों का रंग भगवा है। नेतन्याहू की पत्नी कहते सुनी गई कि उन्हें इंडिया की याद आती है। भारत बहुत निराला है। इसी बातचीत में नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को शानदार नेता भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा इजराइल दौरा अपने आप में ऐतिहासिक है। इसकी एक बड़ी वजह इजराइल की संसद भी है, जो तिरंगे झंडे में रंगी नजर आती है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले पीएम रहे। अब उनके दूसरे इजराइल दौरे में वो अब वहां की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये कितना बड़ा सम्मान है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि साल 1979 के बाद से सिर्फ 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को ही इजराइल की संसद में संबोधन का ये सम्मान मिला है। पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को संसद में बोलने का सम्मान दिया गया। इजराइल का भारत से संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक अपग्रेड करना हो या फिर संसद का संबोधन करने का न्योता देना, इजराइल बता रहा है कि वो भारत से अपने रिश्तों को अमेरिका के स्तर तक का मानता है। तो इजरायली संसद की तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ में दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद पहुंचकर वहां पर संबोधित करेंगे सभी सदस्यों को। प्रधानमंत्री का स्वागत जिस तरीके से आज बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने किया है, उसने बहुत बड़े संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री का ये दूसरा इजरायल दौरा है, लेकिन सदन में बोलने का पहला अनुभव न केवल उनका बल्कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का होने वाला है। तो जो शहीद हैं उनको नमन करते हुए प्रधानमंत्री के अलग अलग पहलू जो इस दौरे के हैं, उसमें भारत और इजरायल की दोस्ती न केवल प्रगाढ़ रही है बल्कि आगे किस तरीके से बढ़ेगी। सुरक्षा कवच जहां पर एयर डिफेंस की बात आती है, उस हिसाब से इजरायल का कोई सानी नहीं है, क्योंकि लगातार आते हुए रॉकेट और मिसाइलों के बीच जिस तरीके से इजरायल महफूज रहा, क्या आयरन डोम, आयरन बीम के जो तकनीक को लेकर साझेदारी है, उससे आगे दोनों देश एक कदम और ले सकते हैं। कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, अपना संबोधन शुरू करेंगे, तो हम आपको दिखाएंगे। पिछली बार जब मोदी इजरायल गए थे, तब भारत और इजरायल के बीच सैटेलाइट विकास, कृषि, जल क्षेत्र में सहयोग पर समझौते हुए थे। लेकिन इस बार मामला अलग है। इजरायली हथियारों, उनकी तकनीक ट्रांसफर को लेकर इस बार कई बड़े समझौते हो सकते हैं, जिसके केंद्र में मिसाइल ड्रोन हो सकते हैं। लेकिन देश के दुश्मनों को परेशान करने वाली सिर्फ यही बात नहीं है। इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पीछे पड़ा है, लेकिन तनाव पाकिस्तान को हो रहा है।
इजराइल की धरती पर मोदी नेतन्याहू की गर्मजोशी से मुलाकात पर पाकिस्तान तनाव में। पाकिस्तान को लगता है कि भारत और इजराइल इस बार ऐसा कुछ बड़ा करने वाले हैं जिसका सीधा निशाना पाकिस्तान और उसके परमाणु कार्यक्रम होंगे। पाकिस्तान का ये डर यूं ही नहीं है, उसे पता है कि इस बार नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा कोई आम दौरा नहीं। यरूशलेम पोस्ट लिखता है कि दो प्राचीन देश अपने संबंधों का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इजराइल लंबे समय से भारत को एक अहम दोस्त के रूप में देख रहा है। संबंधों में भरोसा, इतिहास और राजनीतिक सामंजस्य मौजूद है। अब दोनों देशों के लिए सहयोग का विस्तार करना जरूरी है। 24 फरवरी को यरूशलेम पोस्ट ने इससे पहले मोदी के इजराइल दौरे को वैश्विक सुरक्षा के नजरिए से एक टर्निंग पॉइंट बताते हुए लिखा कि मोदी के दौरे का हर एक पल भारत और इजराइल संबंधों की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। भारत न केवल परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों से पारंपरिक सैन्य चुनौतियों का सामना कर रहा है, बल्कि अपनी सीमाओं के पार कट्टरपंथी इस्लामी विचारधाराओं के प्रसार से भी जूझ रहा है। हिब्रू भाषा के N12 न्यूज से इजराइल के राजदूत रेवेन एजर ने कहा कि भारत को उन संवेदनशील तकनीक तक पहुंच मिल सकेगी जिन्हें इजराइल ने अब तक साझा नहीं किया। सबसे अहम समझौता सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करना है। ये सहयोग बहुत व्यापक होगा और संवेदनशील तकनीक से जुड़ा होगा। तो इस बार बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पहली बार होगा। इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, जिसके प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बचाव के लिए अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू के एक ऐलान ने उड़ा दी, जिसमें उन्होंने भारत के साथ मिलकर पश्चिम एशिया में एक नया गठजोड़ बनाने की बात कही है। नेतन्याहू से पहले इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि इस इलाके में एक नई धुरी उभर रही है, जिसमें तुर्की, कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड और परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान शामिल। ये गठबंधन इजराइल के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा दे रहा है। बेनेट ने तुर्की को इजराइल के लिए नया खतरा बताया। नेफ्ताली बेनेट ने न्यूक्लियर हथियारों के खतरे की तरफ ध्यान दिलाते हुए बार बार पाकिस्तानी परमाणु हथियारों का जिक्र किया। उससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई। इजराइल को डर है कि नाटो की तर्ज पर बना इस्लामिक देशों का गठबंधन मुख्य रूप से यहूदी देश के खिलाफ होगा और अस्तित्व का खतरा पैदा करेगा। इसलिए इजराइल पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को ईरान के परमाणु प्रोग्राम की तरह खतरनाक मानता है। पाकिस्तान ये बात जानता है, इसलिए उसे मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती से डर लग रहा है, क्योंकि इस बार भारत और इजराइल कारोबार से लेकर रक्षा हथियारों की तकनीक तक साझा करने पर समझौता करते दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में भारत और इजराइल के बीच सुरक्षा समझौते पर बड़ी सहमति बन सकती है, जिसके बाद भारत और इजराइल न सिर्फ संवेदनशील टेक्नोलॉजी आपस में बांटेंगे, बल्कि मिलकर हथियार भी बनाएंगे, जिससे भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल 2026 में भारत के साथ करीब 80,000 करोड़ के हथियार के सौदे पर सहमत हो गया है, जिसमें स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेंस बम, 250 किलोमीटर की रेंज वाली रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और 300 किलोमीटर की रेंज वाला आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम शामिल है। इसके अलावा भारत इजराइल से अतिरिक्त मात्रा में हेरोन MK2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन खरीद सकता है। इजराइल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक भी ट्रांसफर करने का बड़ा प्रस्ताव दिया है। आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि आबादी वाले इलाकों को बचाया जा सके। ये कम ऊंचाई से आने वाले रॉकेट, मोर्टार और गोले के खिलाफ काफी प्रभावी है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे के बीच ये सिस्टम भारत के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बन सकता है, जिसके लिए पीएम मोदी सुदर्शन चक्र कार्यक्रम का ऐलान कर चुके हैं। जैसे भारत में इजराइल को लेकर शुरू से राजनीति होती रही है, इसीलिए इजराइल से रिश्ते दशकों तक फ्रीज भी रहे। इसका फायदा हमारे किस तरीके से चीन ने उठाया, इस बात को एक उदाहरण से समझिए। चीन ने अपना पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान J-10 इजराइल की उधार की तकनीक से बनाया है, ऐसे दावे होते रहे। रूस और इजराइल की उधार की तकनीक से चीन ने J-10 लड़ाकू विमान बनाकर बढ़त हासिल की। चीन J-10 को अपना सबसे सफल लड़ाकू विमान बताता है। 1980 में इजराइल ने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए लावी प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए आर्थिक मदद बंद कर दी और इजराइल ने यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया। माना जाता है कि चीन ने इजराइल के लावी प्रोजेक्ट के आधार पर अपना J-10 लड़ाकू विमान बनाना शुरू किया। रूस के इंजन को लगाकर J-10 बनाकर लड़ाकू विमान बनाने में सफलता हासिल की, प्रयोग किया, पूरी एविएशन इंडस्ट्री खड़ी की और आगे जाकर J-20 बनाया, जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है।
तो चीन ने इजरायल की ताकत को समझा, उसकी तकनीक का इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने में किया। सोचिए अगर इजरायल के साथ सहयोग पहले से होता तो आज हम कहां होते। इजरायल से रिश्तों को 42 साल तक फ्रीज रखकर हमने बहुत कुछ खोया, जिसकी कीमत हमें आज चुकानी पड़ रही है। इस बीच एक और विदेश दौरा इस वक्त चर्चा में है। ये दौरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो सिंगापुर के बाद अब जापान पहुंचे। सभी काम आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश हर तरीके से मक्खन मलाई तरीके से बिल्कुल ही विकास की रफ्तार योगी सरकार। आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में जो जापानीज कंपनी का रुझान है, काफ़ी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, ये उसी का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के विभिन्न धर्मस्थलों की यात्रा की। महंत जी की ये यात्रा से हमें बिल्कुल उम्मीद है कि यूपी में निवेश आएगा। अब आप देखते होंगे वहाँ कर्फ्यू का कोई समाचार नहीं आता। बाबा तुम बुलडोजर बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। सिंगापुर में 2 दिन के दौरे में उत्तर प्रदेश के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश की बात मुख्यमंत्री ने की, जिसमें से 60,000 करोड़ का MOU भी साइन हो गया। जापान के दौरे पर जब पहुंचे तो सांस्कृतिक विरासत, सनातन की शक्ति के साथ निवेश की रफ्तार वाले मंत्र पर योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया। ये भरोसा जापान की कंपनियों को दिया है कि यूपी में निवेश मतलब सुरक्षा के साथ प्रगति। सनातन की पहचान, निवेश का नया आसमान, कानून व्यवस्था की दूर चुनौती और धर्म की अर्थव्यवस्था की मजबूती। सिंगापुर के बाद जापान के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में चतुर्भुजीय चक्रव्यूह रचते हैं। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि जापान दौरे से यूपी का चुनाव जीतने की रणनीति योगी कैसे बना सकते हैं। आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है। जिस वक्त सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश की बात, 60,000 करोड़ का MOU साइन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी निवेश की नई रफ्तार हासिल करने जापान पहुंचते हैं, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उनके विदेश दौरे पर निशाना साधते हैं। ये कहना कि विदेश जाना, ये तो विदेश के खिलाफ थे, तो विदेश कैसे चले गए ये लोग कि विदेश जाने पर ये क्या करते हैं, और अब खुद ही विदेश घूम रहे हैं। बताओ वहाँ पर जो खाना होगा तो बताओ कि अपनी प्लेटें ले गए होंगे क्या? मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर बिस जी लेके होंगे प्लेट, कटोरी, चम्मच। वहाँ सुबह ही मछली खा लेते हैं लोग, सुबह ही नॉनवेज खा लेते हैं। तो अब तो हाँ नहीं, सीबू नहीं, दूसरा वाला भी खाते हैं जो तुम अभी बता रहे हो। सब खाते हैं सब। अभी नहीं बोलना है, हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग सनातनी हैं। योगी की विदेश दौरे में वो क्या खा रहे होंगे, इसको लेकर तंज कसते हुए सनातन की बात करते अखिलेश यादव के लिए जापान के दौरे से योगी का सनातनी होने का मतलब बताया जाता है। हमारे बारे में कहा भी जाता है कि हम सनातनी क्यों हैं, क्योंकि कृते च प्रति कर्तव्यम, यानी किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति हमारे द्वारा जो उस कृत्य के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है वही हमारा कर्तव्य होता है, और वही कर्तव्य हमारा सनातन धर्म की एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। मुख्यमंत्री योगी टोक्यो में एक तरफ यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो कार्यक्रम में बताते हैं कि उनका राज्य किस तरह ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए तैयार है, दूसरी तरफ जापान के लोगों के साथ भारत की सांस्कृतिक साझेदारी पर जोर देते हैं। जापान सन ऑफ लैंड है, सूर्य की पहली किरण इस पावन धरा पर पड़ती है। भारत सन ऑफ सन है,
आप देखें किस रूप में एक दूसरे को जोड़ता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। असल में जापान के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री के दो लक्ष्य हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक ताकत के साथ विकास की रफ्तार को सबके सामने रखा जाए, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में निवेश होगा तभी रोजगार समेत दूसरे हर पैमाने पर रफ्तार बढ़ेगी। इसीलिए भगवाधारी योगी जापान के पहले दौरे पर धर्म की ताकत सामने रखते हैं। पूरे वर्ष भर में उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के विभिन्न धर्म स्थलों की यात्रा किया है। प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बौद्ध तीर्थ स्थल, सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल, अन्य सभी तीर्थ स्थलों में। जब योगी आदित्यनाथ टोक्यो में ये संदेश देते हैं कि देश दुनिया के 156 करोड़ लोग पिछले साल धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, तो इसके साथ वो ये बताना चाहते हैं कि यूपी में निवेश का रास्ता कितना सुरक्षित है। तभी तो इस बात पर भी जापान में मुख्यमंत्री जोर देते हैं कि भारत की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में होती है। राज्य के पास 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है। यूपी में झांसी के पास बुंदेलखंड इलाके में 56,000 एकड़ में नया इंडस्ट्रियल शहर बनाया जा रहा है। यूपी में 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। 7 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। नई यूनिट को शुरू करने के लिए 1000 दिनों के लिए कई तरह के एनओसी से छूट भी दी गई है। यहाँ पर जो बड़े सेक्टर हैं, चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर की जाए, उन्होंने जेवर एयरपोर्ट की बात की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए बड़े इन्वेस्टर्स से उन्होंने अपील की। यहाँ पर चाहे सुजुकी की बात की जाए, होंडा की बात की जाए, और कल का भी दिन उनका महत्वपूर्ण है जब वो हाइड्रोजन एनर्जी और जो जापान की जो हाई स्पीड ट्रेन है उसको लेकर जाएंगे। और ये देखिए इस वक्त यहाँ पर जो जोश है, जो लोग योगी आदित्यनाथ से मिले हैं उनमें किस तरह का जोश यहाँ पर नजर आ रहा है। जापान में एक खास बात गौर करने वाली दिखी। जापान में मौजूद भारतीय जब मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्हीं बातों पर मुहर लगाते दिखे जिनका दावा यूपी से सिंगापुर, जापान तक योगी आदित्यनाथ ने किया। जैसे अगर कानून व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री करते हैं तो जापान में रहने वाले भारतीयों ने भी अपने देश प्रदेश में इस बात को महसूस करने की बात की। लेकिन हम अभी आपको सीधे इजरायल लिए चलते हैं। इजरायल के संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। Members of Israel's senior state leadership, heads of foreign missions to Israel, מנכ"ל הכנסת משה צ'יקו אדרי, מזכיר הכנסת דן מרזוק, היועצת המשפטית לכנסת עורכת הדין שגית אפיק, חברי הנהלת הכנסת, אורחים נכבדים מקהילות יוצאי הודו בישראל, distinguished guests, it is our profound honor to welcome the leader of the world's largest democracy and a leader that defining statesman of our time, the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi. Namaste. For Prime Minister Modi, leadership is not merely the administration of a state, but the inspiration of a nation, a huge nation. Guided by that conviction, he has transformed India. He reshaped the landscape in public health, industry, agriculture, and infrastructure. He ignited a digital revolution and drove historic advances in economic improvement and inclusion. He made India the fastest growing major economy on earth, lifting hundreds of millions of lives. In doing so, he gave new meaning to the words Jai Hind,
Long live India! For over 2 millennia, India gave Jews a home and, in our darkest hours, a refuge. India's ancient Jewish communities helped build this land and this country and continue to enrich it with India's culture, cuisine, and warmth. Diplomatic relations were established early, but it was the two prime ministers, Modi and Netanyahu, who forged a true strategic partnership. In 2017, our guest made history as the first Prime Minister of India to visit Israel. I was honored at Prime Minister Netanyahu's invitation to meet him as a Knesset freshman. Today, it is my great privilege as Speaker of the Knesset to welcome him as the first Prime Minister of India to address the Knesset and to make history once again. Thank you, Prime Minister Modi. Between these milestones, cooperation has deepened across every field, most notably in security and technology. As you, Prime Minister, said, technology yields its greatest benefit when shared. In that spirit, our nations are invaluable assets to one another. כשנבחרתי לתפקיד יושב ראש הכנסת, הונחו לפני הצעות לבחירת יעדים לביקור המדיני הראשון. כשביקשתי לדעת באילו מדינות לא ביקר מעולם יושב ראש כנסת, הופתעתי לגלות כי הודו היא אחת מהן. הבחירה על כן הייתה קלה, והקמתי משלחת לביקור המדיני בהשתתפות חברי הכנסת עמית הלוי מהקואליציה ומיכאל ביטון מהאופוזיציה, מובילי קבוצת הידידות בכנסת. With my dear friend and esteemed counterpart, Om Birla, Speaker of the Lok Sabha, we signed the first ever MOU between our parliaments. Over the course of my visit, I encountered a great civilization, a thriving democracy, and a people of remarkable dignity and resolve. החברות בין שתי האומות שלנו עמדה במבחן המאבק המשותף שלנו בטרור. לאחר טבח 7 באוקטובר, ראש הממשלה מודי היה מהמנהיגים הראשונים שגינו את זוועות החמאס ועמדו באחווה לצידם של אזרחי ישראל. ממש כפי שאנחנו עמדנו לצידה של הודו בשעותיה הקשות, לאחר פיגוע הטרור במומביי ב-2008 ובפלגם בשנה שעברה. שני העמים שלנו נאלצים להילחם בטרור, ושניהם, בעזרת השם, ימשיכו לנצח. Next week, the Jewish holiday of Purim and the Indian holiday of Holi will coincide. Colors will fill the air as both our nations celebrate light's triumph over darkness. Both our peoples will proclaim the same timeless truth. Hope always prevails. Prime Minister, you are, as King David was, both statesman and poet. In your poem, Ash, Hope, you describe it as a flame that bursts forth to sear the darkness with its might. That flame burns in the Psalms of King David too. Kaveh el Adonai, chazek ve'yametz libecha, kaveh el Adonai. Hope in the Lord, be strong and let your heart take courage. Hope in the Lord. Our national anthem is called Hatikva, the hope. Mr. Prime Minister, you have called the India-Israel relationship a partnership of hope. From Hatikva to Asha, hope is the hallmark of our bond. Since last night, Prime Minister, the Knesset building has been illuminated in the colors of India. May the light
that unites Jerusalem and New Delhi illuminate our nation's future. आप रहिए खबरदार।